in. We're learning that Tipra Motha founder Pradyot Kishore Manikya has said that the Bangladesh Assistant High Commission office in Agartala will not be allowed to reopen until and unless attacks on Hindu minorities in Bangladesh completely stop and anti-India statements are withdrawn. He's made this statement while reacting to the suspension of all visa and consular services by the Bangladesh Assistant High Commission in Agartala. He said the move followed protests by the Youth Tipra Motha Federation and a press conference where he had warned that if threats were made against Indian diplomatic missions, India was capable of responsibly responding. Nibir Deka once again with us on the broadcast. Nibir, take our viewers through the details. We're now learning that leaders of certain groups are really getting involved as far as the protests are concerned, Nibir, and they are the ones who are threatening that the commissions will not open. Well, absolutely. The Assistant High Commission in Agartala has stopped the visa services from today onwards, and this comes amid mounting pressure in Tripura as well as the entire country regarding the current situation in Bangladesh. And there has been repeated protests being seen in Agartala over the last 48 hours or so done by especially by the Youth Tripura Motha Wing, students' wings, who have been doing demonstrations right in front of the Assistant High Commission and different parts of Agartala as well as in Tripura to stop the visa services and to stop the official functioning of the Bangladesh Assistant High Commission. The Tripura Motha chief Pradyot Debbarma has also gone on to an extent to say that the services have been enjoyed by the Bangladeshi side in terms of education and healthcare as they come to Agartala for different various reasons. However, the same respect has not been enjoyed by those people within India when they go to Bangladesh, and as a result of that, he called out the functioning of the Assistant High Commission in Tripura amid the prevailing situation, and there was also protest in the last 48 hours or so, leading to the closure of the visa services from today onwards as well. Back to you. All right, stay on with me. Some more breaking news coming in. Amid the domestic situation in Bangladesh, the West Bengal border has also been put on high alert. BSF has begun patrolling and the patrolling has intensified along the Malda and Murshidabad border areas is what we're learning right now. My colleague Renik with us on the broadcast. Renik, take our viewers through the details and why specifically Malda and Murshidabad. देखिए, पश्चिम बंगाल में भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर है मालदा और मुर्शिदाबाद का बॉर्डर, उसके साथ साथ ही नदिया का बॉर्डर, क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइन है करीब इसमें 48 किलोमीटर के ऊपर जो जगह है उस जगह में कोई फेंसिंग नहीं है और फेंसिंग ना होने की वजह से उस जगह से इन्फिल्ट्रेशन का बहुत सारा कोशिश भी इसके पहले हुआ था और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी बांग्लादेश का जो सिचुएशन, उसी सिचुएशन में भारत बांग्लादेश का ये जो बॉर्डर है मालदा मुर्शिदाबाद, ये जो बॉर्डर एरिया है उस एरिया में बीएसएफ की तरफ से कड़ी निगरानी रखा जा रहा है। बीएसएफ की तरफ से जो पेट्रोलिंग किया जाता है वो उस पेट्रोलिंग को और भी इंक्रीज किया गया है और रात में नाइट एम्बुश जो है, नाइट एम्बुश कैंप वो तैयार करने का प्लानिंग भी अभी बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जिस जिस जगह पे इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश मैक्सिमम टाइम होता था उस जगह के ऊपर मेनली बीएसएफ तरफ से नजर रखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में इसके पहले जब ये इस तरीके का घटना घटा था, यानी जुलाई 2024 साल के बाद जिस तरीके का घटना देखने को मिला था उस टाइम पीरियड पे भी पश्चिम बंगाल का बहुत सारे एरिया में मेनली अगर देखा जाए तो चिकन नेक कॉरिडोर, शिलीगुड़ी कॉरिडोर, कोच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, ये सब जगह से इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश किया गया था। बहुत सारे बांग्लादेशी लोग जो है वो जान बचाकर भारत में आने का कोशिश किए थे, उस टाइम पर बीएसएफ की तरफ से रोका गया था और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है, जिस बॉर्डर एरिया में फेंसिंग नहीं लगा हुआ है या तो जो बॉर्डर एरिया नैरो रिवर एरिया के अंदर में आता है, यानी शूती एरिया, मेनली जो शूती एरिया है जिसमें रिवर बहुत ही नैरो एरिया में है और उसमें कोई भी आसानी से बांग्लादेश से इधर घुसपैठ कर सकते हैं, तो ये सब जगह जो है
ये जगह को आइडेंटिफाई करते हुए एक जोन तैयार किया गया है बीएसएफ की तरफ से। और बीएसएफ के सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये सब जोनों में बीएसएफ की तरफ से कड़ी निगरानी रखा जा रहा है, नाइट पेट्रोलिंग को इंक्रीज किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही बाइक पेट्रोलिंग और मोबाइल पेट्रोलिंग जो है उनको भी इंक्रीज किया जा रहा है। और मैक्सिमम टाइम में ये रात का अंधेरा में अभी ठंड का सिचुएशन है और फॉग रहता है और फॉग का डेंसिटी को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 100 मीटर का दूरी के अंदर ही जो एम्बुश कैंप वो तैयार करने का प्लानिंग भी अभी बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। यानी जिस बॉर्डर एरिया में सेंसिटिव एरिया है उस एरिया में हर एक 100 मीटर की दूरी पर एम्बुश कैंप करके बीएसएफ जवान जो है वो मौजूद रहेंगे। यानी इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए किसी भी हद तक बीएसएफ की तरफ से कड़ी निगरानी रखा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि बांग्लादेश का फिलहाल जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ की तरफ से और भी निगरानी जो है वो ज्यादा कर दिया गया है। मेनली बांग्लादेश और भारत का जो भी बॉर्डर एरिया में जो भी हिस्सा अभी भी फेंसिंग नहीं लगा हुआ है उस एरिया के ऊपर मेनली बीएसएफ का फोकस है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे बार इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश हुआ था और अभी भी कोई इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश ना कर पाए उसके ऊपर भी बीएसएफ की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। और इसी वजह से मेनली मालदा, मुर्शिदाबाद, बशीरहाट, चिकन नेक कॉरिडोर यानी शिलीगुड़ी कॉरिडोर और कोच बिहार ये जो जोन है ये जोन के ऊपर ही मेनली फोकस जो है ये बीएसएफ की तरफ से दिया जा रहा है।